Assalamu alaikum students. Now we have to do exercise 2A question number 7. Okay. Here 2 points are given, point A and A prime. According to part A, what are the coordinates of A? On x is for x, for the value of x it is 1 and for the value of y it is y. पता ना बेटा, जो फर्स्ट वैल्यू वो x को शो करते हैं और सेकेंड y को शो करते हैं. Similarly, here it is given A prime. For x it is 3 and for y it is 1. Clear? So first thing is that you have to draw points on graph paper. Clear हो गया? आपने ग्राफ पेपर पे इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करना है. किन दो पॉइंट्स को? 1 and 1 को और 3 and 1 को. Okay, so this one is a Cartesian plane, so I have to draw the x-axis and then I have to draw the y-axis. This one is x-axis. Okay, and this one is the y-axis. And I have to take one box is equal to 1 unit. Okay, so in this one is the center. So here this one is 1, 2, 3, 4 on horizontal line. On x-axis I have to take positive. Right hand side I have to take positive value and left hand side I have to take negative value. Similarly बेटा upward मैंने positive ली और downward मैंने negative लिए. Okay, अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करना है. फर्स्ट पॉइंट क्या था? 1 and 1. एक्स एक्सिस का 1 था, y का 1 था. तो यहाँ मैं छोटा से क्रॉस लगा लेती हूँ. दिस वन इज पॉइंट ए, आई हैव टू लोकेट, एंड दिस वन इज पॉइंट ए प्राइम, दैट इज एक्स एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 1 है. ओके, दीज आर द 2 पॉइंट्स. ओके, अब मैंने क्या इन दोनों पॉइंट्स को, अच्छा look here, and now I have to join these 2 points. I have to use another color so that it must be visible to you. So I have to join these 2 points. Look here, when I have to join these 2 points, this line is called y is equal to 1. Okay, okay, in this case both have, we have the value of for y is equal to 1. ठीक है, मैंने इसके सेंटर से ये वाली लाइन लगा गुजारती है और ये शो कर रही है y is equal to 1. ओके, अगेन आई हैव टू ड्रॉ. ये देखिए दोनों पॉइंट्स के अंदर से गुजरी है लाइन ये वाली, और ये लाइन क्या है? y is equal to 1. नाउ आई हैव टू टेक द मिड पॉइंट्स, क्योंकि मुझे ये जो लाइन है y is equal to 1, इसका मुझे मिड पॉइंट चाहिए. ओके, फॉर मिड पॉइंट मैं क्या करूंगी, मैं दोनों जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2, इनका मिड पॉइंट लूंगी. कैसे लूंगी? इस ये वाला फॉर्मूला है फॉर मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. x1 क्या था? 1 और x2 क्या था? 3. इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया. सिमिलरली y1 और y2 को ऐड कर लिया, प्लस करके जब 2 पे डिवाइड किया, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 और सिमिलरली 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आई विल गो 2 and 1. तो मेरे पास जो मिड पॉइंट आया वो आया 2 and 1, एग्जैक्ट इसका सेंटर. ये देखिए, ठीक हो गया. जिससे मेरे पास मिड पॉइंट क्या आया? 2 and 1, एग्जैक्ट सेंटर पे. ये देखिए कलर चेंज करके, ये देखिए एग्जैक्ट सेंटर पे मैंने ये लगाया, दिस वन. और ये आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन भी है. इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? x is equal to 2. ये आप लिख भी लें. This is your equation of the line, that is x is equal to 2, क्योंकि ये उसके सेंटर से गुजरी. ओके, नाउ वी कम टू पार्ट बी. अभी हम आ जाते हैं पार्ट बी पे बेटा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अरेज ऑल दैट. जस्ट 1 minute. Okay, now we comes to part B. According to it, point A is given. What are the value of point A? Yes, for x it is +1 and for y it is -1. Similarly for A prime, for x it is +1 and for y it is +9. So first of all we have to find the line of reflection. You can say we have to find the midpoint. How we have to find the midpoint? By adding these two
coordinates x1 plus x2 and y1 plus y2. So after adding these two, okay, देखें +1 + 1 divided by 2 it becomes 1. Similarly 9 minus 1 it is equal to 8 और 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे it is 4. तो मिड पॉइंट क्या आ गया 1 and 4. ओके, मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 1 and 4. फिर हमने इसकी इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है. So we comes to part B. So according to this part B, first of all I have to draw x-axis and y-axis. Look here. This one is x-axis and this one is y-axis. Clear? And this one is the first point, that is a. For x-axis it is 1 and for y-axis it is -1. ये देखिए जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था. Clear? And the second point क्या था? The same. For x-axis it is 1 और for y-axis it is 9. Between 8 and 10. क्योंकि मैंने y-axis पे 2 का डिफरेंस लिया. Look here. Just give me. Okay. ये देखें 2 का डिफरेंस लिया तो 8 और 10 का जो सेंटर है that is 9. तो ये सेकंड पॉइंट है, that is सेकंड पॉइंट क्या है a प्राइम. So I have to write it for you. a प्राइम है आपके पास +1 and +9 और जो a आपके पास वो है आपके पास +1 और -1, क्योंकि y की वैल्यू क्या आती है -1. I've tried it here. +1 और y की वैल्यू क्या आती है -1. ठीक हो गया. एंड दैट इज a और दैट इज a प्राइम. ये a प्राइम है. दिस वन इज a प्राइम. क्लियर? अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है. जो मिड पॉइंट हमने निकाला था वो क्या था 1 + 1 क्या था 2. 2 को डिवाइड पे 2 किया 1. एक्स एक्सिस का 1 था और वाई एक्सिस का क्या था 4. अब ये देखें ये आपके पास क्या है 9 से -1 तक गए थे. इसका सेंटर ऑब्वियसली यही बना है ना 4. ठीक है, 4 यूनिट्स नीचे मूव किया. ये देखें ओरिजिन से दे तक 4 और 1 5 और सिमिलरली 4 से लेकर ऊपर तक आप चलो 4 यूनिट एंड +1 5. एग्जैक्ट सेंटर में ये एक्स ये वाला. तो ये जो एग्जैक्ट सेंटर में हमारे पास आया मिड पॉइंट 4 and 1. तो ये हमारे पास क्या है, ये सेंटर वाला पॉइंट है. ओके, ये देखिए दिस वन इज योर सेंटर पॉइंट. तो ये सेंटर पॉइंट क्या है जो इन दोनों का एग्जैक्ट सेंटर पे डिवाइड कर रहा है. तो ये क्या होगा सेंटर वाला पॉइंट है हियर. ये जो मिड पॉइंट है 4 and 1 ये आपका सेंटर पॉइंट है. तो ये इसी पे आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन होकर. इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है आपके पास, यस x is equal to 1. Clear? This is part B. Now we move towards part C. A और B are almost same. C में थोड़ा चेंज है क्योंकि A और B में दोनों में ये देखे ना आपके पास पॉइंट सेम थे. कोऑर्डिनेट्स में या x एक्सिस सेम था या y एक्सिस सेम था. तो वो उसका तो वो और उसकी जो लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन थी वो वही y is equal to x थी. दैट्स वो आपने आराम से उसको फाइंड आउट कर लिया. नाउ वी कम्स टू पार्ट C. Okay, so according to this part C, they have given you 2 points. A is 2 and 1 and A prime is 0 and 3. अब ये देखें इनमें से कोई भी जो कोऑर्डिनेट है वो आपस में एक ना x एक्सिस सेम है ना y एक्सिस सेम है. लेकिन देखें जब हमने पार्ट A और B किया था, मैं आपको दोबारा आपको दिखाती हूँ. लुक हियर. तो इस इन कोऑर्डिनेट्स में देखो 1 and 1 3 and 1 यानी इसमें y सेम था और जो सेकंड वाला था उसमें ये देखें x सेम है. ओके, लेकिन ये जो आपके पास है इसमें ये जो थर्ड वन है इसमें आपके पास देखें a या 2 and 1 और ये 0 and 3. सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है इन दोनों पॉइंट्स को. हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है. फिर हमने फाइंड करना है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. सेम वही मेथड है. आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2. मिड पॉइंट आपके पास क्या आ गया 1 and 2. और अब आपने चूंकि इक्वेशन ऑफ द लाइन भी करनी क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो सेंटर यानी कार्टेशियन प्लेन का. एक सेकेंड, ये हमें नहीं पता कि सेंटर पॉइंट क्या. सपोज दिस वन इज योर कार्टेशियन प्लेन और सपोज ये मैंने जब लोकेट कर लिया 2 and 1 और 0 and 3. ओके, जब मैंने इसको लोकेट कर लिया तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा. सपोज ये
सपोज मैं कर रही हूँ, ये दिस इज अ लाइन। अब ये नहीं पता चला जो दूसरी लाइन उसको सेंटर से कट करेगी वो इधर से करेगी, इधर से करेगी या इधर से करेगी, क्योंकि इट इज ये उसमें तो हमारे पास एक या x इज इक्वल टू 1 था या y इज इक्वल टू 2 था, तो हमें आराम से पता चल गया था विच वन इज द सेंटर पॉइंट। लेकिन इसमें हमें नहीं समझ आ रहा कि कौन सा सेंटर पॉइंट होगा, तो इसलिए अब हम इसमें ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, इस केस में हम लोग ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। सो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है, आपने एक तो मिड पॉइंट ले लिया और एक इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक ले लिया, चाहे आपने ए ले लो चाहे ए प्राइम ले लो, और फिर आपने ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है, वर्टिकल चेंज टू हॉरिजॉन्टल चेंज। सो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, पता है ना फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट x1 है और सेकंड y1 है, ये फर्स्ट x2 है और सेकंड y2 है, तो ये 1 माइनस 2 ले लेंगे और सिमिलरली 2 माइनस 1 ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास -1 आ जाएगा, दैट इज योर जो है आपका ग्रेडियंट या स्मॉल m है। अब आपने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे फाइंड आउट करनी है, आई विल टेल यू। ओके, अब आपने क्या किया, जब आपने ग्रेडियंट ले लिया और आपके पास ये भी आ गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है 1 एंड 2, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, आपने यहाँ पुट कर लिया, इसको सॉल्व किया, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास पॉइंट आ गया C, जिसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट वो लाइन है जो y एक्सिस को कट करते हो, ये किस पॉइंट पे कट करती है, 1 पे कट करती है। सो वी कम टू द डायग्राम, जस्ट वेट। ओके, दिस वन इज योर x एक्सिस, दिस वन इज योर y एक्सिस, और जब आपने ये दोनों पॉइंट्स लोकेट किया 0 एंड 3 और ये वाला, तो आपके पास ये वाली लाइन बनी है, इसको मैं एक लंबी सी लाइन लगाती हूँ, ये देखिए ये आपको लाइन बनी, लेकिन अब ये नहीं पता कि इस लाइन का सेंटर किधर से गुजरेगा, इस साइड से गुजरेगा, इस साइड से गुजरेगा। सो इस पर्पस के लिए हमने सबसे पहले मिड पॉइंट लिया, फिर हमने ग्रेडियंट लिया और उसके बाद हमने सी लिया, सी ने इसको 1 पे कट किया, इसका मतलब हमने जो लाइन लगानी है वो वर्टिकल एक्सिस के 1 से गुजरेगी। ओके, इसने वर्टिकल एक्सिस के 1 से इसने कट किया इस वाली जगह पे, ठीक है, और ये दिस इज द मिड पॉइंट, और ये जो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट, ये देखें यहाँ आपके पास y एक्सिस का 2 है और x एक्सिस का क्या है 1, एंड दैट इज योर मिड पॉइंट। ठीक है, ये जब भी आपने फाइंड आउट किया, फर्स्ट पॉइंट ये था और सेकंड पॉइंट ये था, x इज इक्वल टू 1, इधर से आपने एक लाइन गुजारी है, यानी आपने C और मिड पॉइंट से एक लाइन गुजारी है जिसने जो हमारी इनिशियल ग्राफ था उसको इस वाले पॉइंट पे कट किया, और वो पॉइंट क्या है, x एक्सिस का 1 है और y एक्सिस का 2 है, दैट इज योर सेंटर पॉइंट। क्लियर हो गया? नाउ वी कम्स टू पार्ट डी, सेम पार्ट डी भी आपने इसी तरह करना है। सो वी कम्स टू पार्ट डी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। So first of all, I have to erase this. पार्टी डी में बेटा 2 पॉइंट्स गिवन है, उन 2 पॉइंट्स को पहले आपने लोकेट कर लेना है। ओके, आपने सबसे पहले उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेना है, लोकेट कर लेना है, क्योंकि these are the 2 points. आफ्टर लोकेटिंग दिस 2 पॉइंट आपने क्या कर लेने हैं, दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, और y इंटरसेप्ट, जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है 2 आई है। ओके, तो आपने इसका मतलब है वर्टिकल लाइन को ये 2 पे कट करेगा। ओके, और आपके पास जो उसके अलावा जो मिड पॉइंट्स है उसको और इसको जब आपने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास एक लाइन बनी है, जस्ट वेट। सेम इसका भी कोई प्रोसीजर जो हमने सी में किया, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही, और हमने ऑलरेडी ये इंग्लिश वर्जन में किया भी हुआ है, सो आई डोंट रिपीट इट। दिस वन, सो ये वाला आपके पास मिड पॉइंट है। ओके, फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल फॉर टुडे, देन अल्लाह हाफिज।